अगे हर कोई सवाली जेड़ा ओदे हजूर च आवे बरकतां नाल ओ पर जावे बरकतां नाल ओ पर जावे मेरा तेरा यसु जलाली जिदे अगे हर कोई सवाली Sare ga re ga re ga ma ga re sa re sare ga re ga ma pa dha ga re sa ni da pa ma ga re sa जेड़ा अपनी चोली फैलाए ओ खाली कदी न जावे जेड़ा अपनी चोली फैलाए ओ खाली कदी न जावे पर देंदा चोली खाली साडी जिंदगी दा यसु वाली पर देंदा चोली खाली साडी जिंदगी दा यसु वाली मेरा तेरा यसु जलाली जिदे अगे हर कोई सवाली पुकारे यसु कोलो नजात पावे जेड़ा ओनू दिल तो पुकारे यसु कोलो नजात पावे ओदा हर कम हुंदा है जलाली ओदी शान जे उच्ची ते निराली ओदा हर कम हुंदा है जलाली ओदी शान जे उच्ची ते निराली जेड़ा ओदे हजूर च आवे बरकतां नाल ओ पर जावे बरकतां नाल ओ पर जावे मेरा तेरा यसु जलाली मेरा तेरा यसु जलाली जिदे अगे हर कोई सवाली जिदे अगे हर कोई सवाली हालेलुया हालेलुया खुदा उनकी तारीफ हो। आज के जिंदा कलाम को देखेंगे कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 11 बाब और उसकी 1 से लेकर जो है 45 आयत तक खुदा का जिंदा कलाम देखेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 11 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 44 आयत तक खुदा का जिंदा कलाम देखेंगे। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पोंछे। इसी का भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि आए खुदावंद देख जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा यह बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल ज़ाहिर हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा आओ फिर यहूदिया को चले। शागिर्दों ने उससे कहा आए रब्बी अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहीं जाता है। यीशु ने जवाब दिया क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन को चले
تو ٹھوکر نہیں کھاتا کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے کیونکہ اس میں روشنی نہیں۔ اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا ہمارا دوست لازر سو گیا لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں۔ پس شاگردوں نے اس سے کہا آئے خداوند، اگر سو گیا تو بچ جائے گا۔ یسوع نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا، مگر سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا۔ تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا تاکہ تم ایمان لاؤ، لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں۔ پس توما نے جسے توام کہتے تھے اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ پس یسوع کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے 4 دن ہوئے۔ بیتنیہ یروشلم کے نزدیک قریباً 2 میل کے فاصلہ پر تھا۔ بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے۔ پس مارتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی، لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہیں ہے اور تجھے بلاتا ہے۔ جو سنتے ہی جلدی اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ یسوع ابھی گاؤں میں نہیں پہنچا تھا بلکہ اسی جگہ تھا جہاں مارتھا اس سے ملی تھی۔ پس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے، دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھ کر باہر گئی، اس خیال سے اس کے پیچھے ہو لی کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے۔ جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اس سے کہا اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ جب یسوع نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا اے خداوند چل کر دیکھ لے۔ یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ پس یہودیوں نے کہا دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا، لیکن ان میں سے بعض نے کہا یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی اتنا نہ کر سکا کہ یہ آدمی نہ مرتا۔ یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا پتھر کو ہٹاؤ۔ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مارتھا نے اس سے کہا اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے۔ یسوع نے اس سے کہا
मैंने तुझसे कहा न था, अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो उस पास खड़े हैं मैंने ये कहा था कि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकार कर, आए लाजर निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका चेहरा रुमाल से लपेटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। बस बतेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा उस पर ईमान लाए। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन। आइए हम अपने सरों को खुदा उनकी हुजूरी में झुकाएं आज के पैगाम के लिए। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक कुल कायनात को बनाने वाले खुदावंद दिल और दिल की गहराइयों से शुक्र बजा लाते हैं, और खुदावंद आपकी प्रेजेंस के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, और आपके सुंदर कदमों को छूते हैं, और आपको वेलकम कहते हैं और धन्यवाद कहते हैं। खुदावंद देखने और सुनने वालों को सलामती चाहता हूँ, और तेरे पाक लहू में छिपाता हूँ, अपने आप को तेरे पाक रूह के मसा में छिपाता हूँ, इसलिए कि तेरे बंदे में कोई तालीम नहीं जिसके बायस खुदावंद इस वचन को मैं बयान कर सकूँ। अपने बंदे के होंठों और जुबान का खतना कर और पाक रूह का मसा ढेल, ताकि तेरा पाक रूह मुझ में से होकर बोले, और इस कलाम के वसीले से देखने और सुनने वाले खुदावंद तेरे पाक जलाली नाम से 100 गुना फल लाने वाले बन सके। इस वक्त अगर कोई मेरी बहनें या भाई किसी भी बीमारी लिचारी में जो है झूल रहा है, तो खुदावंद तेरा पाक हाथ उस पर बढ़ जाए जो शिफा भरा हाथ है, और उसकी बीमारी लिचारी सुस्ती काली यीशु के नाम से जाती रहे। हालेलुया। अगर किसी वबा में कोरोना वायरस या दीगर जो वबाएं चल रही उनमें वो लड़ रहा है, तो उससे भी खुदावंद वो शिफा पाए। हालेलुया। अपनी कुदरत ज़ाहिर कर और अपना पाक फजल देखने और सुनने वालों के साथ हमेशा कायम रहे। पाक खुदावंद तेरे पाक और जलाली और कुदूस नाम से जो कुछ भी मांगा है हमने बड़ी कसरत के साथ पा लिया है। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो जो हमें बेपनाह मोहब्बत करता है, और उसकी मोहब्बत ही के वसीले से मेरे अजीजों मैं और आप जो है इस वक्त खुदावंद की हजूरी में है, और ये खुदावंद का खास फजल है कि खुदावंद ने मुझे और आपको फिर से ये जो है जिंदगी के दिन बख्श दिए हैं, और मैंने और आपने इस नए साल में कदम रख लिया हुआ है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। इस साल में अगर हमारी जिंदगियों में कमी पेशी है तो इस कलाम के वसीले से और खुदावंद के नाम के वसीले से वो कमियां मेरी और आपकी जिंदगी से दूर हो सकती हैं, इसलिए कि मेरा और आपका निजात दहिंदा, कौमों का निजात दहिंदा, कबीलों का निजात दहिंदा ये कुदरत और इख्तियार रखता है चेंज करने का। आज हम तबीबे आजम के बारे में देखेंगे जो खुदा का जिंदा बेटा है, और मैं और आप इसी तबीबे आदम को देखते हैं जो रंजीदा होने के बायस जिसकी आंखों में क्या आ गए थे, आंसू आ गए थे। इसलिए आंसू आ गए थे, वो भी एक जो है उसने मुजस्सम होने के बाद इंसानी रूप धारा था, और इसीलिए उसकी आंखों में भी वो दुख रखते हुए इंसानी हमदर्दी को सामने रखते हुए उसकी आंखों में क्या
बहना शुरू हो गए, आंसू बहना शुरू हो गए रंजीदगी के बायस। और ये मरियम कौन है? ये वही मरियम है जिसने यीशु के पांव पर इत्र डाला था। और ये मार्था और मरियम और लाजर जो है वो यीशु के इंतहाई करीबी लोगों में इनका शुमार होता था। और ये जो लाजरस है ये कहाँ का रहने वाला था? ये बैतनिया का रहने वाला था। और जो कलाम वचन हमें बताता है कि यरूशलेम से ये 2 मील के फासले पर एक गांव था बैतनिया का, जिसमें जो है मरियम, मार्था और इनका भाई जो है इनका बड़ा अजीज भाई जो है वो बैतनिया में रहते थे। मेरे अजीजों, हम देखते हैं जो सारा का सारा कलाम हमने अभी देखा है, जो इसकी यूहन्ना 11 की हमने 45 याद देखी हैं, तो इसमें एक मुकम्मल तस्वीर हमें देखने को मिलती है। किसके बारे में देखने को मिलती है? लाजरस के बारे में देखने को मिलती है, मरियम के बारे में देखने को मिलती है, और मार्था के बारे में देखने को मिलती है, और फकीयों और फरीसियों के बारे में एक हजूम भी हमें इस भीड़ में नजर आता है। इस क्राउड में जब लाजरस जो है बीमारी के बाद यीशु की गैर मौजूदगी में उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और मैं और आप देखते हैं कि ये तबीबे आजम ना सिर्फ ये बीमारियों पर कुदरत और इख्तियार रखता है, A to Z बीमारी से चंगाई देने का इसको इख्तियार है, शिफा देने का इख्तियार है, लेकिन ये तबीबे आजम 4 दिन के मुर्दे को भी क्या करने का इख्तियार रखता है? जिंदा करने का इख्तियार रखता है। हालेलुया! मेरे प्रभु की तारीफ हो, उसकी वडियाई हो, वो ही तारीफ और सजदे के लायक है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जो लोग जो थे फकी फरीसी, वो बुड़बुड़ाए थे। और वो क्या बुड़बुड़ाए थे कि ये अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को टांगे देता था, बहरे और जो बेजुबान लोग थे, गूंगे थे, उनको जबान बख्शता था, और जिनकी आंखें नहीं होती थी उनको रोशनी बख्श देता था। लेकिन ये इतना ना कर सका कि जो इसके बड़े करीबी हैं, जो इसके बड़े अजीज हैं, जो बड़े इसके दोस्त हैं, और ये घराना जो मरियम और मार्था और लाजर पर मुनस्सर है, जो यीशु के जो प्रस्तार थे, यीशु से जुड़े हुए थे, ये लाजरस के लिए ये इतना न कर सका कि उसे जिंदा करता। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि कलाम हमें ये बावर करा रहा है कि लाजर को मरे हुए कितने दिन हो गए थे? 4 दिन हो गए थे। तो मेरे अजीजों, जब कोई इंसान मरता है और उसके चंद घंटों तक उसके जो बॉडी है वो वार्म रहती है, और ये महसूस करते हैं कई बार लोग कि अभी ये जिंदा है, लेकिन ये जो है लाजर जो है ये तो कलाम तस्दीक कर रहा है। और कितने दिन जो है कब्र में रखे हुए से हो गए हैं? 4 दिन हो गए हैं। और इसकी तस्दीक उसकी बहनें भी करती हैं कि ऐ खुदावन, अब तो उसे 4 दिन कब्र में उतारे हुए हो गए हैं, रखे हुए हो गए हैं। अब तो उसके बदन में क्या आती होगी? बदबू आती होगी। मेरे अजीजों, यीशु ये बातें सुनकर कोई उस पर यीशु पर असर नहीं हुआ, इसलिए कि वो जिंदगियों को जो जिंदगी बख्शने का अख्तियार रखता है, सांस देने का अख्तियार रखता है। और यीशु जो है वो थोड़ा जो है 2 दिन के बाद आता है, और फिर रास्ते में खुदावंद अपने काम करते हुए आता है, और वो इनके पास जो है वो 4थे दिन यीशु पहुंचता है। और ये क्या शिकवा करती हैं कि अगर मैं खुदावन, ये दोनों बहनें शिक मारता जाती है भागी हुई, और
اور یہ کہتی ہے کہ اے خداوند تیرا دوست مر گیا ہے، اگر تو یہاں پر ہوتا تو یہ لازر ہمارا بھائی جس کو ہم بڑا پیار کرتے ہیں یہ نہ مرتا، اگر تو یہاں پر موجود ہوتا۔ لیکن خداوند کیا کہتا ہے، شاگردوں کو کیا کہتا ہے کہ یہ خدا کے جلال کے لیے ہے، خدا کے جلال کے لیے ہے۔ لازر جو ہے مرا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، وہ سو رہا ہے۔ اور میری بہن، میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، جب ہم سو جاتے ہیں تو اٹھنے کی امید ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے پیارے پربھو نے، یسو نے جو زندگی دینے کا اختیار رکھتا ہے، کیا کہا کہ یہ سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے۔ اور جو ہے یسو نے جو ہے مریم اور مارتھا سے کہا کہ اسے کہاں رکھا ہوا ہے، اور وہ اس کو اس قبر پر لے کر گئیں۔ اور یہ قبر کہاں تھی؟ ایک غار میں قبر تھی، اور اس لازرس کی قبر پر کیا رکھا ہوا تھا؟ ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ اور یسوع جب وہاں پر پہنچتا ہے تو فقی اور فریسی بھی وہاں پر موجود ہیں۔ ایک بہت ہجوم ہے جو ان سے افسوس کے لیے، ان کے دلوں کو دلاسا دینے کے لیے، مریم اور مارتھا کو دلاسا دینے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، وہ بھی سارے کے سارے جو ہے اس غار میں چلے جاتے ہیں، اس قبر پر چلے جاتے ہیں، اور یسوع بھی چلا جاتا ہے۔ اور یسوع کیا حکم دیتا ہے کہ لازرس کی جو قبر پر پتھر ہے، بھاری پتھر ہے، اس کو کیا کرو، ہٹا دو۔ اور جب پتھر ہٹا دیا جاتا ہے تو یسوع کیا کہتا ہے کہ اے لازرس باہر نکلا، باہر نکلیا۔ اور اسی لمحے، اسی گھڑی لازر جو ہے اس کے منہ پہ کپڑا لپیٹا ہوا ہے، رومال لپیٹا ہوا ہے، اس کا بدن جو ہے کپڑے سے لپیٹا ہوا ہے، وہ یہ کپڑے سمیت، رومال سمیت اس کا جو چہرہ جو تھا وہ ڈھانپا ہوا تھا، وہ باہر نکل آیا اور وہ زندہ ہو گیا۔ ہیلیلویا! خدا کی قدرت ظاہر ہوئی، یسوع نے اپنا جلال ظاہر کر دیا۔ اور جو وہاں پر لوگ تھے، میں اور آپ دیکھتے ہیں وہ کیا تھے، ان میں سے فقی اور فریسی تھے جو بڑبڑائے تھے جب یسوع کے اس معجزے کو دیکھا، مردہ کو زندہ کرنے کا، جو 4 دن کا مردہ تھا، اس کی سانسیں اس کے میں واپس آ گئیں، سانسیں یسوع نے بخش دیں۔ اور وہ سارے کے سارے، ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں یسوع پر توکل کرنے لگے، بھروسہ کرنے لگے۔ کس کے باعث؟ 4 دن کے مردہ کے زندہ ہونے کے باعث جو ہے یسوع کے پر کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ میری بہن، کس کے باعث ایمان لے آئے؟ اس بڑے معجزے کو دیکھنے کے باعث۔ جو لازرس یسوع کا دوست تھا، یسوع نے اسے کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا۔ اسی لیے مریم اور مارتھا کو یسوع نے اپنے شاگردوں کو بھی یہ کہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے۔ اور اسی لیے کہا تھا کہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ یہ خدا کے جلال کے لیے جو ہے ظاہر ہوگا۔ اور میری بہن، میرے بھائی، یسوع کا جلال جو مریم اور مارتھا ہی پر ہی نہیں بلکہ فقیوں اور فریسیوں پر ظاہر ہو گیا۔ اور اسی کے باعث یسوع کا جو ہے چرچا جو اس یروشلم، بیتنیہ اور گرد و نواح کے علاقہ میں پھیل گیا۔ اس بڑے کام کے باعث، مردے کو زندہ کرنے کے باعث، لازرس کو زندہ کرنے کے باعث، جو 4 دن کا مردہ تھا، یسوع نے اسے زندہ کر دیا۔ آج میری بہن، میرے بھائی، ہم گناہوں کے کفن میں اب جو ہے لپٹے جا رہے ہیں، گو کہ ہمارے اندر زندگیاں ہیں، تو آج اپنے گناہوں کے کفن سے مجھے اور آپ کا کفن کو، جو گناہوں کا کفن ہمیں باندھے ہوئے ہے، وہ یسوع کھول سکتا ہے۔ جس طرح سے لازر کا
कफन जो है जिसकी सांसें बंद थी, यीशु ने उसकी सांसों को बहाल कर दिया। आज मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर मैं और आप गुनाहों के कफनों में लपेटे हुए हैं, गुनाहों के जो जंजीरों में जकड़े हुए हैं, तो मेरा और आपका प्रभु यीशु नासरी खुदा का बेटा जो है उन जंजीरों को तोड़ने का अख्तियार रखता है। जो गुनाह के जो हमारे गुनाहों के बायस हमारे आंखों पे पर्दा हो चुका है, हमारे दिलों पर पर्दा हो चुका है, हम गुनाहों के बोझ तले दब चुके हैं और हम गुनाह के बायस जो है वो कफनों में बंद हैं। तो खुदावंद आज हमें उन कफनों में से निकालना चाहता है, उन जंजीरों को तोड़ना चाहता है, इसलिए कि मेरा और आपका खुदावंद 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करता है, लाजरस को जिंदा करता है। तो गुनाहों को भी माफ करने का इख्तियार मेरे प्रभु के पास है, यीशु के पास है। जिस तरह से मैं और आप सलीब पर देखते हैं कि यीशु ने जो है डाकू को बराह रास्त जो है हमेशा की जिंदगी का दाखला दे दिया, अब्दी आराम में यीशु ने बराह रास्त उसे दाखिल कर लिया। किसके बायस दाखिल कर लिया? उसने गिड़गिड़ा कर खुदा से क्या मांग ली थी? तौबा कर ली थी, माफी मांग ली थी। और उस डाकू ने, जो दाहिने हाथ डाकू था, उसने क्या कर दी? दरखास्त कर दी। और वो दरखास्त क्या की थी कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे क्या करना? याद करना। तो यीशु ने उसी घड़ी उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ अब बादशाही में होगा, आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर हम गुनाहों के कफन में जो लिपटे हुए हैं, गुनाहों के बायस मुर्दा हो चुके हैं, तो यीशु, मेरा यीशु नासरी खुदा का जिंदा बेटा आज हमारे गुनाहों से छुटकारा देकर हमें जो है जिंदा करना चाहता है। वो हमारी जिंदगियों को जो है रवा दवा करना चाहता है। किसके बायस? वो रास्ते में लाना चाहता है, वो ईमानदारी में लाना चाहता है, वो मोहब्बत में लाना चाहता है। कौन ला सकता है? मेरा और आपका प्रभु जो है इन गुनाहों के कफनों से हमें निकाल सकता है। जिस तरह से 4 दिन के मुर्दे लाजर को मेरे प्रभु ने जिंदा किया था। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन। मेरा तेरा यीशु जलाली, मेरा तेरा यीशु जलाली, जिदे अगे हर कोई सवाली, जिदे अगे हर